Hello students, we take one more question on absorption of a company. Now, if you see the question, we have been given balance sheet of the two company, that is a Amar and Company and Seema and Company. If you see in the adjustment part, Amar Limited, Amar Company absorbed Seema. Amar absorbed Seema. So Amar is a purchasing company and Seema is a selling company. So Amar Limited is purchasing company, Seema Limited is selling company. Amar Limited absorbed Seema Limited. So in any questions, the first thing in absorption that you have to very carefully make sure is which one is a purchasing company, which one is a selling company. If you make a mistake, it would create a blunder. You will end up with a 0 mark because entirely thing has been different. So you have to be very careful. So Amar and Company absorbs Seema Limited with the following conditions. Now if you see in the balance sheet, in the balance sheet we have three reserves: general reserve, investment and P&L. We have asset, liability and share capital consisting of equity share and preference share. There are two liabilities, one creditors and one is a debenture. Now first adjustment, equity shareholder of Seema Limited were to be allotted 20,000 equity shares. So Seema Limited के shareholders को 20,000 equity share मिलेंगे परचेसिंग कंपनी से एट ₹12.5. 10 रुपी का शेयर है, 12.5. So 10 रुपी फेस वैल्यू, 2.5 is a premium. Can you say this is a part of PC? Yes, this is a part of PC. Preference shareholder of Seema Limited were to be allotted 15% new preference share of 100 each. जितने प्रेफरेंस शेयर सीमा लिमिटेड के, यहाँ पे देखो 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर है, सिमिलरली 1 लाख रुपीज प्रेफरेंस शेयर बीइंग रिसीव्ड, but rate of preference share dividend का rate जो previously 12% है, now it would be 15%. Share would remain the same. So can you say this is part of PC? Yes, because what is a PC? PC is a payment made by a purchasing company to the shareholders of selling company. Shareholder consisting of equity share as well as preference shares. तो आपका यहाँ पे इक्विटी शेयरहोल्डर्स को जो पेमेंट हो रहा है, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को जो पेमेंट हो रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द पीसी. डिबेंचर होल्डर ऑफ सीमा लिमिटेड वेयर टू बी अलॉटेड सेम अमाउंट ऑफ डिबेंचर एट 100 ईच. सो ये जो सीमा लिमिटेड के 20,000 डिबेंचर्स हैं, उनको नए डिबेंचर इश्यू होंगे परचेसिंग कंपनी. कैन यू से दिस इज पार्ट ऑफ पीसी? नो, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ पीसी बिकॉज पेमेंट्स टू शेयर होल्डर ओनली विल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द पीसी. डिबेंचर होल्डर्स को कुछ पे हो रहा है तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पीसी. प्लांट वैल्यूड 150. तो यहाँ पे आप सीमा का जो प्लांट है 1,50,000, दिस प्लांट इज वैल्यूड एट 150. तो यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 4 है, वी हैव टू कंसीडर दिस रिवाइज वैल्यू. इन्वेस्टमेंट फंड रिजर्व सीमा शुड कंटिन्यू इन फ्यूचर. तो आपका जो सीमा का जो ये है, ये आपको परचेसिंग कंपनी में भी कंटिन्यू करना है. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. तो आपको जर्नल एंट्रीज and prepare balance sheet as per AS 14 in the books of Amar and Company. यानी you are concerned with the purchasing company, selling company में नहीं, ये purchasing company में journal entry लिखना and balance sheet as per the absorption in the nature of merger. Now it's very important. It's amalgamation in nature of merger. दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट. यानी मर्जर है तो कहां पे डिफरेंस होना है? तो मर्जर है तो डिफरेंस कहां आएगा? गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं आना है फर्स्ट. सेकंड, एक तो गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा. सेकंड, नेट असेट इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी माइनस रिजर्व. यानी परचेसिंग कंपनी है ना, सेलिंग कंपनी की असेट भी इनकॉर्पोरेट करेगा, लायबिलिटी इनकॉर्पोरेट करेगा एंड ऑल्सो रिजर्व्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड. तो आप बैलेंस शीट में सेलिंग कंपनी का जितना असेट लायबिलिटी होगा, सारे असेट लायबिलिटी वो इनकॉर्पोरेट करेंगे.
अब ट्रूली स्पीकिंग दिस इज नॉट अ केस ऑफ मर्जर, क्योंकि मर्जर में कंडीशन था परचेसिंग कंपनी अक्वायर असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सेलिंग कंपनी एट बुक वैल्यू, जबकि यहाँ पे एक आप प्लांट का रिवैल्यूएशन हो रहा है, बट एस वी रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन कि मर्जर से सोल्व करना है तो वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। तो फर्क कहाँ आएगा, डिफरेंस कहाँ आएगा, एक तो गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा, इंस्टेड डिफरेंस वुड बी एडजस्टेड। सेकंड, असेट लायबिलिटी के साथ परचेसिंग कंपनी आल्सो इनकॉर्पोरेट द रिजर्व्स। अभी कैलकुलेशंस क्या करना होगा, तो कैलकुलेशन एक तो हमें क्या करना होगा पीसी का। सो पीसी के लिए दो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को 20,000 इक्विटी शेयर इश्यू हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू हो रहा है। सो नाउ so purchase consideration equity shares को 20,000 equity share at 12.5, so it's 2,50,000। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 1 लाख रुपीस के सेम, यहाँ पे देखो 1 लाख रुपीस के शेयर थे, यहाँ पे लिखा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ सीमा लिमिटेड वेयर टू बी अलॉटेड 15% न्यू प्रेफरेंस शेयर ऑफ अमर। पता नहीं कितना शेयर, तो जितना था उतना ही शेयर इश्यू करेंगे। सो परचेस कंसिडरेशन कम्स टू 3,50,000, जिसमें 2,50,000 के शेयर इश्यू होंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, 1 लाख रुपीस के प्रेफरेंस शेयर इश्यू होंगे इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। नाउ जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी। तो जर्नल एंट्री, सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या होगा, परचेस कंसिडरेशन। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 2 एंट्री से कंप्लीट किया था, इन दिस क्वेश्चन विल पास 3 एंट्री, सो यू कम टू नो कि अगर 3 एंट्री करना है तो कैसे करेंगे। नाउ यू मे आस्क द क्वेश्चन सर सही कौन सा होगा, सी दोनों इज करेक्ट वन, उसमें हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री को कंबाइन करते हैं, यहाँ पे दोनों सेपरेट लिखते हैं, सो यू कैन डू एनी ऑफ द थिंग, बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सबसे पहला एंट्री पीसी ड्यू, पीसी ड्यू यानी परचेसिंग कंपनी के लिए पीसी रिसीवेबल है या पेएबल, इट्स पेएबल। पेएबल टू हुम, सेलिंग कंपनी, बट सेलिंग कंपनी में कौन किसके साथ डील हो रहा है, लिक्विडेटर, तो लिक्विडेटर को पे करना है, लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा। एंड पैसा क्यों ड्यू हो रहा है, बिजनेस परचेस करे, सो एंट्री होगा बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ सीमा लिमिटेड, and it is always being passed at PC amount 3,50,000 से एंट्री होता है। सो बिजनेस परचेस टू लिक्विडेटर, ये बिजनेस परचेस टेम्पररी अकाउंट है विच कंसिस्टिंग ऑफ ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी। अभी क्या करना होगा, सारी असेट लायबिलिटी इनकॉर्पोरेट करेंगे, बिजनेस परचेस टेम्पररी अकाउंट को कैंसिल करेंगे। तो जितनी असेट हमने अक्वायर किया वी हैव टू डेबिट दिस असेट, लायबिलिटी क्रेडिट। तो आपका लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, सारी असेट्स यहाँ पे बैलेंस शीट में देखो सारी की सारी असेट्स है जो वो हमने असेट्स इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, डेबिट किया हुआ है, एंड सारे का सारा लायबिलिटी क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। सो ऑल दिस असेट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज में क्या होगा, डिबेंचर, क्रेडिटर, इन्वेस्टमेंट फंड, पीएनएल। आप बोलोगे सर ये पीएनएल ये दो क्यों लिखा, अमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर में परचेसिंग कंपनी इनकॉर्पोरेट असेट एज वेल एज लायबिलिटी एज वेल एज रिजर्व टू बिजनेस परचेस। ये जो आपका टेम्पररी अकाउंट था उसको आपको कैंसिल करना पड़ेगा, बिजनेस परचेस। अभी जो आपने 3,50,000 पे किया है विच माइट बी मोर और लेस, तो डिफरेंस कहाँ एडजस्ट करना है, जनरल रिजर्व में। तो यहाँ पे डिफरेंस इस एंट्री में यहाँ डिफरेंस आएगा 30,000, दिस इज एडजस्टेड इन जनरल रिजर्व। यहाँ पे डिफरेंस आता तो वी राइट हियर जनरल रिजर्व 30,000, बिकॉज अगर ये अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेस होता तो हम लोग यहाँ पे लिखते गुडविल, बट मर्जर में नो गुडविल, नो कैपिटल रिजर्व, डिफरेंस टू बी एडजस्टेड इन द रिजर्व। तो आपको ये जो भी डिफरेंस आएगा यू हैव टू एडजस्ट इन द रिजर्व का। तो नॉर्मल केस में क्या नहीं होता, इन्वेस्टमेंट पीएनएल नहीं होता, रिजर्व नहीं आते, बट अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर में परचेसिंग कंपनी इनकॉर्पोरेट असेट एज वेल एज लायबिलिटी एज वेल एज रिजर्व्स। नेक्स्ट पीसी ड्यू हो गया, इनकॉर्पोरेशन ऑफ असेट लायबिलिटी हो गया। अब पीसी डिस्चार्ज पेमेंट्स, रिसीवर द डेबिट, लिक्विडेटर ऑफ सीमा लिमिटेड क्या दे रहे उसको, इक्विटी शेयर दे रहे तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर इश्यू हो रहा है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड फेस वैल्यू से ज्यादा में हो रहा है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट करेंगे। सो यहाँ पे देखोगे लिक्विडेटर ऑफ सीमा 350 ये क्रेडिट था, अब इसको पेमेंट हुआ तो दिस अकाउंट विल बी डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एंड अभी पुराने डिबेंचर्स को नए डिबेंचर इश्यू हो रहा है, डिबेंचर वाज अ लायबिलिटी, तो लायबिलिटी को कैंसिल करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। सो
12% डिबेंचर, ये आपके ओल्ड डिबेंचर्स हैं एंड उनको न्यू डिबेंचर इश्यू हो रहा है, तो दिस वुड बी न्यू डिबेंचर. So old debenture account debit to new debentures, so it would be cancelled. So this is all about the entries. अभी बैलेंस शीट डिमांड किया हुआ है, न्यू बैलेंस शीट. तो न्यू बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले एज आई टोल्ड यू टू स्टार्ट विद द लायबिलिटी साइड. कोई भी एक साइड से आप असेट से भी स्टार्ट कर सकते हो. लायबिलिटी साइड 3 पोर्शन है, शेयर होल्डर फंड है, नॉन करंट यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी. असेट में नॉन करंट असेट एंड करंट असेट. शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले शेयर कैपिटल आ जाएगा. शेयर कैपिटल में यू हैव इक्विटी शेयर्स. अब देखो ऑलरेडी कितना इक्विटी शेयर था, यहाँ पे 5 लाख का इक्विटी शेयर ऑलरेडी था अमर का, और कितना इश्यू किया था 20,000 इंटू 10, क्योंकि शेयर कैपिटल में ऑलवेज यू टू क्रेडिट फेस वैल्यू, प्रीमियम वुड ऑलवेज बी एडेड टू द प्रीमियम. तो 20,000 इंटू 10 2 लाख. सो यहाँ पे 5 लाख प्लस 2 लाख 7 लाख के इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे. तो 70,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच. देन अब देखो कि प्रेफरेंस शेयर्स थे ऑलरेडी 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स थे. नए कितने इश्यू हो रहा है 1 लाख, तो 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएंगे. सो प्रेफरेंस शेयर्स 2 लाख प्लस 3 लाख रुपीस के प्रेफरेंस शेयर्स. देन रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व 50,000, इन्वेस्टमेंट, शेयर प्रीमियम, सारे रिजर्व्स यहाँ पे हमने लिख लिए. लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या था, डिबेंचर्स था 50 था, प्लस हमने नए डिबेंचर इश्यू किए थे, तो डिबेंचर आ जाएंगे 70,000, 50 प्लस 20. ट्रेड पेबल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड अभी एक ही बच रहा है डिबेंचर के बाद. क्रेडिटर 90 प्लस 50 140 आपका हो गया. क्रेडिटर बैलेंस शीट असेट साइड कंप्लीट, आई एम सॉरी लायबिलिटी साइड कंप्लीट. असेट साइड नॉन करंट में सबसे पहले फिक्स असेट, उसमें फिक्स असेट में टेंजिबल फिक्स असेट. अब देखो बैलेंस शीट में टेंजिबल क्या है, बिल्डिंग प्लांट, 2 टेंजिबल फिक्स असेट है. स्टॉक डेटर कैश ये करंट असेट्स एंड फर्नीचर. तो बिल्डिंग प्लांट एंड फर्नीचर 3 टेंजिबल फिक्स असेट, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर, दोनों का टोटल करना है. फिर इंटेंजिबल में कुछ भी नहीं है. करंट असेट में स्टॉक डेटर एंड बैंक, उसका टोटल. बैलेंस शीट दोनों बैलेंस शीट का टोटल लिखना है. देन this would be 450 plus 180 630. So plant machinery 630, furniture and total is 15,60,000. आप देखोगे यहाँ पे एक चीज हमें कंसीडर नहीं हुआ है, ये जो प्लांट का रिवाइज वैल्यू दिया है वो हमने कहीं पे भी कंसीडर नहीं किया. क्यों नहीं किया, कि बिकॉज वी आर रिक्वायर्ड टू सोल्व द क्वेश्चन विद मर्जर, एंड मर्जर में असेट लायबिलिटी हैज बीन टेकन ऑन बुक वैल्यू, उसमें कोई रिवैल्यूएशन होता नहीं है. इसीलिए हमने यहाँ पे सब जगह पर प्लांट को उसकी बुक वैल्यू पे लिखा है. So this is the balance sheet of a purchasing company. So this is an example of amalgamation nature of merger. Thank you very much.